important issue. I really wish the House was in order. Madam, through you, I would like to ask the Honourable Minister that the perception globally is that after various attempts made by even the Honourable Prime Minister's visit to Switzerland, Mexico, when time comes to decision, India has got a huge diplomatic snub, unfortunately, in this situation. So how does this government see to get us this membership, since we've all tried and we've had so many failed attempts? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं सुप्रिया जी की इस बात से सहमत हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस शोर शराबे में बोलने के बजाय अगर यहाँ शांति होती तो मैं एक बार सारी जिज्ञासा को शांत करने में समर्थ हो सकती थी, लेकिन अब शोर में ही सवाल हो रहा है। जहाँ तक सुप्रिया जी का सवाल है कि मैक्सिको में प्रधानमंत्री गए और उन्होंने मैक्सिको समर्थन मांगा, तो मैं कहना चाहूँगी कि मैक्सिको ने केवल समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि बाद में जब निर्णय हमारे पक्ष में नहीं हो सका तो एक देश जिसने ये कहा कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाओ प्लीनरी की और दोबारा से इस पर निर्णय करो, वो देश मैक्सिको ही था। और जहाँ तक उनको कहना है कि शायद ऐसा लग रहा है कि हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है, तो मैं एक ही बात ही कहना चाहूँगी कि आज से पहले जब चर्चा होती थी तो ये कहा जाता था कि क्या भारत एनएसजी का सदस्य बन सकेगा। आज पूछा जा रहा है भारत कब एनएसजी का सदस्य बनेगा। तो क्या से कब तक का सफर हमारी कूटनीतिक रणनीति का परिणाम है, और इसलिए एक बार यदि निर्णय नहीं हो पाया तो उसे कूटनीतिक विफलता नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि आगे का जो रास्ता उसमें से निकला है उसे हमारी विजय माना जाना चाहिए। India already enjoys a freedom in civil nuclear since we tied up the treaty in 2008, and we've had various benefits. So what is going to be the added benefit because of the NPT waiver which we already have in 2008? We're already in the nuclear commerce. So by getting the membership, what more benefits is India going to get as a country in this region? बहुत वही सवाल उन्होंने पूछा है। मैं कहना चाहूँगी कि 2008 के जिस वेवर का वो जिक्र कर रही हैं, वेवर का मतलब है बरामदे तक पहुँचना और मेंबरशिप का मंदिर है कमरे के अंदर पहुँचना। तो 2008 और एनएसजी के मेंबर में वही फर्क है जो कमरे के बाहर बरामदे में बैठने और कमरे के अंदर बैठने में होता है। और जहाँ उनका कहना एडिशनल बेनिफिट क्या होगा, जब आप कमरे के बाहर हैं तो आप अपने हितों की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। 2008 के वेवर की बात सुप्रिया जी ने की, पर मैं उन्हें याद दिला दूं, 3 बरस बाद 2011 में एक निर्णय उसी एनएसजी ने ये भी किया कि सेंसिटिव एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नॉन एनपीटी स्टेट्स को ट्रांसफर नहीं की जाएंगी। वो हमारे विरुद्ध निर्णय था, लेकिन अगर हम अंदर होते तो हम ये निर्णय नहीं होने देते। तो अभी हम रूल टेकर हैं, रूल मेकर नहीं हैं। जब हम एनएसजी के मेंबर हो जाएंगे तो हम खुद रूल मेकर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एडिशनल बेनिफिट हमें मिलने वाला है। श्री धनंजय महाडिक, Sugata Bose ji, want to Thank you, Madam Speaker. For members to withdraw. Thank you, Madam Speaker. There is no shame, Madam Speaker. Asking the question. There is no shame, Madam Speaker, in aiming high and then failing, even if temporarily. But I'm not sure that the quest to become the 49th member of the nuclear suppliers group constitutes a high aspiration that will fulfill our legitimate global ambitions. It is not on the same category as our quest to become a permanent member of the Security Council. Now, the way in which the campaign to achieve NSG membership was carried out has resulted in strained diplomatic relations with our large Asian neighbor, China. The Honorable External Affairs Minister had said just before the Seoul meeting that China's objections are only procedural. Now, I would like to ask the Honorable External Affairs Minister whether this is a very important issue bearing on the national interest, and therefore I would like to ask
what steps the Honorable External Affairs Minister is prepared to take to address the strained relations with China, because the simultaneous peaceful rise of both India and China is the biggest diplomatic challenge facing the world in the 21st century. It's sad. Your own members don't know that it is के सवाल के दो खंड हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत हाइप क्रिएट कर दी, हम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, हाइपर हो गए। ये बिल्कुल गलत है। हमने कोई हाइप क्रिएट नहीं की। हमने 12 मई को जब एप्लीकेशन दी 2016 में, इतने लो फैनफेयर से दी, कोई धूम धड़ाका उसके लिए नहीं किया। हाँ, बाद में भरपूर प्रयास जरूर किया। अगर कोई भरपूर प्रयास को हाइप कहता है तो ये सही नहीं है। और अगर हमने आधा अधूरा प्रयास किया होता और आलोचना होती तो समझ में आ सकती थी, लेकिन लक्ष्य को साधने के लिए भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। आज तक यही समझा है हमने, और उसी के लिए भरपूर प्रयास किया। उसे हाइप नहीं कहना चाहिए, हमने पूरा होमवर्क किया। जो स्वागतदा कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि चाइना प्रोसीजरल हर्डल कह रहा है, मैं आज भी कह रही, इस सदन के मंच पर खड़े होकर कह रही कि चाइना ने प्रोसीजरल हर्डल्स लगाए, और मेन प्रोसीजरल हर्डल था कि नॉन एनपीटी स्टेट्स को एमएसडी का स्टेटस कैसे दिया जाना चाहिए, इसका प्रोसेस तय होना चाहिए। ये ठीक है कि इसके कारण निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन जहाँ तक चाइना के साथ इंगेजमेंट का सवाल है, हम इंगेजमेंट में लगे हैं। अभी भी हमने प्रयास बंद नहीं किया, और मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि एक बार अगर कोई ना माने, इसका मतलब ये नहीं है वो कभी नहीं मानेगा। ये हमारे कांग्रेस के मित्र जीएसटी पास नहीं होने दे रहे, 4 सत्र गुजर गए, सारी पार्टियां मानी हुई हैं, एक अकेले उनके कारण रुका हुआ है। लेकिन क्या मैं ये कह दूं वो कभी नहीं मानेंगे और जीएसटी कभी पास नहीं होगा? हम मनाने में लगे हैं, हो सकता है इसी सत्र में मान जाए और इसी सत्र में पारित हो जाए। तो ये कहना कि एक बार वो नहीं माने इसलिए वो कभी नहीं मानेंगे, हमारी चाइना से एंगेजमेंट बराबर बनी हुई है। अनवर राजा। Speaker, the Government of India needs to create 63,000 megawatt of clean energy by 2030. And for fulfilling this demand, Government of India has signed nuclear fuel supply arrangements with 12 countries. It also hopes to enter the NSG. Since India has not signed the NTP, its efforts to enter NSG is opposed by certain countries. All efforts of the Government of India to enter the NSG so far has been a failure. However, in order to meet the clean energy demand by 2030, Government of India may have to enter the NSG on its own efforts like France. It may also opt for signing the NPT before entering the NSG. Madam Speaker, through you, I would like to know the clear-cut policy of the Government of India in this matter. अध्यक्ष जी, क्लियर-कट पॉलिसी ये है कि अभी उन्होंने बोला कि क्या हम एनपीटी के मेंबर बने बिना एनएसजी के मेंबर बन जाएंगे। हमें वेवर एनपीटी के मेंबर बने बिना ही मिला था। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, हम एनपीटी कभी साइन नहीं करेंगे, ये आज यहाँ इस मंच पर कहना चाहती हूँ। लेकिन एनपीटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धताएं पूर्ण हैं, और मैं इसका श्रेय पुरानी सरकार को भी देना चाहती हूँ। 2008 में जब वो वेवर लेकर आए, तब उन्होंने कुछ प्रतिबद्धताएं मानी थी कि हम ये कमिटमेंट्स करेंगे, जिसमें कई चीज़ें थी। उसमें था हम सिविल और स्ट्रेटेजिक अपने कार्यक्रम को सेपरेट करेंगे, हम IAEA सेफगार्ड्स को मानेंगे, हम एडिशनल प्रोटोकॉल को मानेंगे, हम FMCT का कमिटमेंट करेंगे। वो पुरानी सरकार ने 6 साल तक पूरी की, अब 2 साल से हमारी सरकार पूरी कर रही है। तो एनपीटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सरकारों की भी और देश की, ये जग जाहिर है, और उसी पर हमें वेवर मिला था। उन्हीं प्रतिबद्धताओं के कारण हमें एनएसजी की मेंबरशिप मिलेगी। जहाँ तक एग्रीमेंट साइन करने का सवाल है, उन्होंने ठीक कहा, 6300 मेगावाट यानी 63 गीगावाट हम न्यूक्लियर से लाएंगे। हमने केवल 4 देशों के साथ नहीं, हमने 13 देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, और बांग्लादेश, EU और जापान, इन तीनों के साथ भी निगोशिएशन पूरे हो गए हैं, और वो
भी उनके साथ भी MOU साइन हो।